of a vector in a plane. Look at the topic, resolution of a vector in a plane. How to understand it? When teacher, please. When teacher is talking about plane, that means he has to discuss in the plane, and that plane can be either XY plane, this plane, or another plane can be ZX plane, and still another plane can be YZ plane. And all the three orthogonal axes are perpendicular to each other mutually. So you have to discuss either motion in the YZ plane, look at it is Y axis, it is Z axis, or in the motion XY plane, or in the motion in the ZX plane. That means when you study the planar motion, the one of the three axis coordinate is 0, because when body will move in the XY plane, Z coordinate will be 0 all the time for the moving body. When body will be moving in the ZX plane, Y coordinate will be 0 all the times. When body will be moving in YZ plane, X coordinate of the moving body will always be 0 at any position. इस अब जब हमें प्लेनर मोशन का मीनिंग समझ आ गया, मान लीजिए हम अपने वेक्टर को एक्स वाई प्लेन में स्टडी करते हैं. लुक, दिस इज योर वेक्टर, let it is vector A, and this is your x-axis, this is your y-axis. Let's call it x-axis, let's call it y-axis. Both are perpendicular to each other and body is moving in the xy plane. So this vector has to be resolved into its rectangular components. For that, I have to draw the perpendicular on x-axis such that one of the component is represented by pink color. This is the component along x-axis. I have to draw another perpendicular on the y-axis such that sky blue color represents the y component. And everybody knows that along x-axis and along y-axis there are unit vectors which are represented by I cap and j cap respectively. Unit vector is what? Unit vector is that vector whose magnitude is always 1 and they are in different along different axes direction wise. So therefore, when I have to represent the component of vector A along x-axis, this component should be represented by whatever is the total length. First of all, length is taken A raised to power x, A subscript x, and the unit vector along x-axis is multiplied A I cap. Similarly, when I have to represent the component along y-axis, this particular total length is AY, but overall vector is represented by AY into the direction component J cap. Okay, so this particular vector can be written in the form of x component plus in the form of y component. X component AX I cap, AY J cap. This thing you should remember. So somebody will say, sir, what are these two things which you are putting in the circle? My answer is, the section which is put in the circles are the rectangular components of vector A.
How can you say these as a rectangular components? Everybody knows that each angle of the rectangle is 90 degree, and presently these two vectors are also at 90 degree with respect to each other. From there, we have picked up the word rectangular components. Rectangular components are also called as orthogonal components. Orthogonal. Okay. Now, this is one learning point. Second learning point I have to tell my students. What is that? Listen, if this is A subscript Y, this yellow dotted line should also be A subscript Y. Why? Because opposite sides of the rectangle are equal. Now you see, this is your AX, this is your AY, and the total yellow is the A vector. Then all the three can be linked with the Pythagoras theorem. So therefore, perpendicular square plus base square is under root, and this is equal to magnitude of vector A, which is written either this way, vector mod, or it can be simply written as this. Okay, this is your second learning point. Let's move to the third learning point. Now somebody can question me, sir, what is this AX? AX is equal to what? Then I will say, Bache, if you want to know AX is how long the AX is, you have to mention the angle. Either you can mention the angle here or you can mention the angle here. Suppose I mention the angle here theta. Okay? It is my choice whether I mention here or I mention here. Suppose I mention the angle theta here, then what the triangle will look like? It will look like theta is here, this is your A, this is your A subscript Y, and if I ask my students, what is sine theta? Everybody will say sine theta is perpendicular AY upon hypotenuse A. Therefore, A can be brought to this side. So from that, my students will conclude that A y component is equal to A sine theta. Learning point third. From there, student can learn, sir, जिस तरफ ये angle नहीं बना होता, the side towards which this theta is not mentioned, that is always a sine component. Okay? Now, in the same triangle, let's learn the other component. Everybody knows this particular section is represented by AX, and the line which is touching the angle as well as 90 degree, that is always the base. बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि बेस हमेशा लेटा हुआ होता है. ऐसा नहीं है. अगर मैंने ये थीटा इधर बना दिया होता है इधर, तो ये वाला बेस हो गया होता है ए वाई. बेस हमेशा वो होता है जो हमारे कंसर्न एंगल थीटा को भी टच करे और 90 डिग्री दोनों को भी टच करे, दोनों एंगलों को टच करे. तो यहां से इफ आई आस्क माय स्टूडेंट्स, बेटे व्हाट इज cos थीटा, दे विल से सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, and it goes to that side. Therefore, AX is equal to A cos theta. This is the magnitude of Y component. This is the magnitude of, sorry, Y component, that is the magnitude of X component. So that is another learning point. मेमोरी टूल सिंपल ये है कि जो हमारा वेक्टर है उसने जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाया होता है उधर को अगर आपने कंपोनेंट लेना है तो वो हमेशा कोसाइन कंपोनेंट रहेगा. जिस तरफ एंगल नहीं बना हुआ उस तरफ कंपोनेंट लेना है तो वो हमेशा साइन कंपोनेंट है. और ये मैंने आपको प्रूफ भी दिया ट्रिग्नोमेट्री की मदद से. जितने बच्चों को ये पहला आर्टिकल समझ आ गया है बेटे, समरी हो गया, बहुत अच्छी रिवीजन हो गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड. हैव यू अंडरस्टूड दिस?
I am waiting for your response, otherwise I will leave the class. Either you have to raise the right hand or you have to raise the left hand. अगर समझ आ गया तो राइट हैंड, नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड, अदरवाइज ऑर्डर मी टू गो अवे. नहीं जवाब दे रहे, मैं आई एम लिविंग क्लास बेटे. एक तरफ आपको हाथ खड़ा करना ही करना है, आइदर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड. तो ये बच्चा दोनों में से कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा पहली लाइन में, इसको जरा बच्चे को बाहर कर दो, मैंने नहीं लगानी इसकी क्लास. ये ब्लू शर्ट वाला फर्स्ट बेंच पे बैठा जो, एक हाथ खड़ा करना ही करना है, मैंने पहले बता दिया, आइदर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड. दोनों में से अगर दोनों हाथ नीचे हैं तो फिर बाहर चले जाओ क्लास से, नो नीड टू अटेंड माय क्लास. तो ज्यादातर बच्चों के लेफ्ट राइट हैंड खड़े हैं, डाउन डाउन. एक बच्चा सरदार बच्चा बैठा ब्लैक टी शर्ट वाला, बेटे आपका लेफ्ट हैंड खड़ा था शायद, एम आई राइट? कोई बच्चा ऐसा है जिसका लेफ्ट हैंड खड़ा हो? लेफ्ट हैंड का मतलब है कि आपको इसके समझने में कोई डाउट है, आप दोबारा पूछ सकते हो. सो मैक्सिमम बच्चों का, लगभग सबका, एक बच्चे का लेफ्ट खड़ा था, वो अब बोल नहीं रहा. एनीबॉडी अगर पूछेगा तो मैं बताऊंगा. सो वी हैव अंडरस्टूड दी. मेरे को ये लिस्ट भेजी गई आपके स्कूल के द्वारा, उसमें मैंने अपने बच्चों को रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर समझाया. अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे सर इसमें मैंने कम से कम क्या चीज याद करनी, तो मैं कहूंगा बेटे एक तो ये बॉक्सा याद कर लो. दूसरा, जिस तरफ एंगल बना होता है वो वाला कंपोनेंट हमेशा कोसाइन, हमेशा कोसाइन कंपोनेंट होता है. जिस तरफ एंगल नहीं बना होता वो हमेशा साइन कंपोनेंट. बस इतनी बात मैं कहूंगा उस बच्चे को कि आपने ये याद करना. आर प्रोसीडिंग फर्दर नाउ. ओके बेटे. आगे मेरे बच्चे को, एक बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों को ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर समझाओ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर समझाओ. ध्यान से सुनो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, मैं दो लॉ अपने बच्चों को इकट्ठे समझाऊंगा. एक है पैरेलल, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स. दोनों ध्यान से देख लेना बेटे. सबसे पहली बात ये कि मेरे से बच्चा पूछ सकता है सर इन दोनों का मकसद क्या है. लेट मी टेल यू, इन दोनों का सेम मकसद है, सेम मकसद, इक्वल. क्या है वो पर्पस, क्या है इनका उद्देश्य, क्या है बेटे. अगर हमारे पास एक वेक्टर ए हो और दूसरा वेक्टर बी हो, उन दो वेक्टर्स को ऐड करके क्या आंसर आएगा, उस आंसर को निकालना ही इसका मकसद है. और यही मकसद इधर है, यही मकसद इधर है. दूसरी बात यहां मैं बता देना चाहता हूं कि जिन दो वेक्टर्स को हम ऐड करना चाहते हैं उन दोनों की यूनिट्स सेम होनी चाहिए. ये मस्ट कंडीशन है, मस्ट. ऐसा नहीं हो सकता कि आप फोर्स में वेलोसिटी ऐड करो और मेरे को बोलो सर फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी इज आल्सो ए वेक्टर. दिस एडिशन इज नॉट वैलिड. either you can velocity into velocity or force into force or acceleration into acceleration, same units. Second point, sir, how to understand triangular law or parallelogram law of vector addition. Let me tell you, I will say suppose bete a vector is given to you like this, okay, and b vector is given to you like this. Very fun. What you will do, your attention, sir, you should do what? Parallel to this a vector
draw a vector A. Remember, this A vector should be equal to the given vector. Okay? Then parallel to B vector, draw the other vector. Let's draw it like this way. Look here. Both are parallel means in same direction. Both are parallel means in same direction. Their lengths are also equal. Okay? So one vector is finishing here, the other one is starting from here. If that is the condition, in scientific terminology, we call it vectors are taken in order. In order. एक के बाद एक मंदिर में हम प्रसाद बांटते हैं तो बहुत से बच्चे इकट्ठे आ जाते हैं, हम कहते हैं नो नो नो, इस तरह से प्रसाद नहीं बंटेगा, लाइन में लग जाओ सारे बच्चे। तो मतलब they are organized, they are in order. One vector finishes here, other starts from there. That means A vector and V vector are taken in order. Then, if the two vectors which are required to be added are taken in vector, then the closing side of the triangle taken in reverse order gives the resultant vector R, which is the addition vector of A and B. If two vectors are taken in order, then the third vector, which is the closing vector of the triangle, taken in reverse order. इसकी डायरेक्शन उधर को लेनी है, ना कि इधर को लेनी है। R की डायरेक्शन इधर को नहीं लेनी। Never. You have to take that side. Then the third closing vector of the triangle gives the resultant of two vectors. Okay? One more thing. What is that? A vector is in this side, V vector is in this side. The angle between their directions is theta. Theta is the angle between the direction of vector A and vector B. Okay, तो definition क्या बना triangular law of vectors का? सुनो. If two vectors which are meant to be added can be represented magnitude wise as well as direction wise by the two vectors of the triangle taken in order, then closing side of the triangle taken in the reverse order represents the resultant of addition of the two vectors magnitude wise as well as direction wise. Now come to parallelogram law of vectors. In the parallelogram law of vectors, bete, the only difference is that these two vectors A and B should be starting from the same point. Vector A is here, vector B is here. Look here, their directions are same, magnitudes are same, but they are starting from the common point. Common word, common starting point. Common co is picked up. Starting means initial. Therefore, A and B, two vectors, are co-initial vectors. Co-initial vectors. Triangular law, parallelogram law of vector addition says, now complete the parallelogram. This line is parallel to A vector and this line is parallel to B vector. Parallelogram is completed. Now draw the vector which is in yellow color. This is the primary diagonal of the parallelogram. There is another diagonal shown by the white color. It is the secondary diagonal. Remember, you have to pay the full attention only on the yellow vector, which is the primary vector, because it is co-initial with the given two vectors. This primary vector gives the resultant R vector. That is the vector which is the answer of addition of given two vectors. One more thing, whatever theta is mentioned here, the same theta I am mentioning here, A direction, B direction. This angle which is being shaded as the pink color
is representing the same angle theta. Let me make the definition. If the two vectors which are meant to be added are representable by the adjoining sides of the parallelogram such that vectors are made co-initial direction wise as well as magnitude wise, then primary diagonal of the parallelogram gives the addition of two vectors magnitude wise as well as direction wise. इसका मतलब दोनों ही केसेस में हमें डेफिनेशन समझ आ गई। अब हमने इस आर वेक्टर को बताना है ये कैसे कितना होगा बेटे। तो इस आर वेक्टर को बताते हैं रिजल्टेंट वेक्टर को, उसको बताने के लिए बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी वी हैव टू टेल इट्स मैग्नीट्यूड as well as we have to tell its direction. Two things we have to tell because it is a vector, it has two characters. First of all, let me tell my students what is its magnitude. जो मैं फार्मूला लिखूंगा वो इस आर्टिकल में और इस आर्टिकल दोनों में लगेगा, और क्योंकि उसका मकसद ही सेम था, दोनों के दोनों आर्टिकल एक ही चीज देते हैं निकाल। अब इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है दोनों में। आर वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड बाय दिस वे और दिस वे, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर की कितनी लंबाई है, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर ट्वाइस ए की लंबाई बी की लंबाई cos of theta under root. This formula is applicable in this diagram as well as in this diagram. Now we have to tell the direction. Please understand how to find the direction. To tell the direction, we will say to the person, look, we will give the direction in the form of angle. वो कहता क्या मतलब, मेरे को तो आर वेक्टर की दिशा चाहिए, किधर को है ये कैसे बताओगे। हम कहेंगे उसको देखो भाई, आपको आपका अपना वेक्टर ए तो पता ही है ना किधर को है, क्योंकि ए गिवन है हमें और बी भी गिवन होता है पेपर में और थीटा भी गिवन होता है, आर हमारे लिए क्वेश्चन मार्क होता है। हम कहेंगे ए वेक्टर तुम्हारा अपना वेक्टर है, ये तो तुम्हें पता है किधर को जा रहा है, वो कहता है यस पता है। तो तुम्हारे ए वेक्टर से अल्फा एंगल बनाते हुए मेरा रिजल्टेंट वेक्टर जाएगा, तो हम एंगल की मदद से आर की डायरेक्शन दे देंगे। मान लो हमने अल्फा को 30 डिग्री दिया, तो हम कहेंगे तुम्हारे ए वेक्टर से 30 डिग्री ऊंचा उठा लो और आर वेक्टर ड्रा कर दो। वो कहेगा कितना लंबा ड्रा करे, हम कहेंगे ये अंडर रूट को निकालो, जितना इसका आंसर आएगा उतना इस आर की लंबाई होनी चाहिए। सो अल्फा गिव्स द डायरेक्शन। अल्फा किसमें है, ए वेक्टर और आर की डायरेक्शन में, इधर भी बनाते हैं आर की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन दोनों में अल्फा बना दिया मैंने। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्फा निकालें कैसे। हम उसको बोलेंगे कि आपको हम tan अल्फा निकालना सिखाएंगे। एक बार हमने आपको tan अल्फा निकालना सिखा दिया, फिर आप अगले स्टेप में लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट। अब कहता है ये फार्मूला क्या दोनों में एप्लीकेबल है, अब आंसर इज यस। इस फार्मूले को याद कैसे करना है, योर अटेंशन बेटे, इसको फार्मूले को बच्चे बार बार भूल जाते हैं, मेरा तजर्बा है 26 सालों का, बार बार भूलते हैं। अब ध्यान से सुन लो इसको याद कैसे करना है। शाबाश, कभी नहीं भूलोगे, जो बच्चा मेरी बात ध्यान से सुनेगा वो कभी नहीं भूलेगा। आपने ये देखना है कि आपका ये जो एंगल अल्फा है वो ऐड हो रहे दोनों वेक्टरों में से किसके साथ टच कर रहा है, ए के साथ। बी के साथ तो टच नहीं कर रहा, ए के साथ टच कर रहा है, बी के साथ तो टच नहीं कर रहा। जिसके साथ टच कर रहा है इंपॉर्टेंट है वो,
उसको अकेले को यहां लिखना है डिनोमिनेटर में, उसका मैग्नीट्यूड। और जिसके साथ नहीं टच कर रहा, ये नहीं टच कर रहा, ये अल्फा को देखना है, अल्फा इज नॉट टचिंग बी वेक्टर। उस वेक्टर को, अनइंपॉर्टेंट वाले को यहां भी लिखना है, यहां भी लिखना है, और इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सहारा देना है। tan के सामने आप यहां साइन लिखोगे, यहां कॉस लिखोगे, लेकिन प्रिकॉशन ये है कि गलती से भी सेम एंगल मत लिख देना अल्फा। अल्फा तो हमने निकालना है, हमने उसके गिवन एंगल का फायदा लेना है। तो यहां थीटा लगाएंगे, यहां थीटा लगाएंगे। एक खास बात, डिनोमिनेटर में ये जो दो टर्म्स लिखी हुई हैं, इनमें से गलती से भी आपने प्लस का निशान डालना नहीं भूलना। तो याद रखना इस मेमोरी टूल में कि यहां पर आपने हमेशा और हमेशा वो एंगल लिखना है जो हमारे कंसर्न्ड एंगल जिसको हम निकालना चाहते हैं उसके साथ टच में हो। और ये वेक्टर वो वेक्टर होना चाहिए जिन दो वेक्टर्स को हमने ऐड करना है उनमें से एक वेक्टर होना चाहिए। कितने बच्चों को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ आया? प्लीज रेज योर राइट हैंड। सुस्त बच्चा मेरी क्लास में ना बैठे, एक हाथ जरूर खड़ा करना है, आइदर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। ये एक बच्चा, सर ये 11th मेडिकल में सबसे आगे बच्चा बैठा है, एक जरा प्लीज ऐसे करके बैठा। इसको मेरी क्लास से बाहर कर दो या इसका एक हाथ खड़ा करवाओ। कौन बताओ बेटे, आइदर लेफ्ट हैंड और बोलो बच्चे। यही बच्चा जो अभी ह्यूमरस एटमोस्फियर बन गया था क्लास में, हंसी वाला, वो बच्चा मेरे को अलग से बताए। बेटे आपको दोनों समझ आ गए हैं? दोनों समझ आ गए आपको? हाँ हाँ। तो ये था हमारा सेकंड जो आपसे पूछ रहे थे। अब है बेटे इसमें है एक और चीज बताना चाहूंगा आपको मैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन निकालना है, याद रहे। विद द हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल you can also understood the topic of relative motion, or you can say relative velocity. Both article can be understood with the link of each other. Let me tell you how. Better listen carefully. Firstly, come here. Let our one vector is A and other vector is B, and we are interested in the subtraction of the two vectors. What is the answer of this vector? That is our target. First thing, when vectors are subtracted or added, their answer is always a vector. That is always a vector. Because it is subtraction, let's call it S. Second thing, the vectors which are to be subtracted should have same units. Same units. Third thing, it can also be written like this: A vector plus in the bracket minus B vector. You can write it like this. Now let's understand in detail how to do the subtraction. For this, listen carefully, bete. A vector is drawn this way. B vector is also given to us. They are made co-initial vectors. The angle between them, their direction, smaller angle is also given. So this is given, this is given, this is given. Now
First of all, complete the parallelogram. Draw the white line parallel to vector A. Draw the yellow line vector parallel to vector B. This time you don't have to draw the primary diagonal. Rather, you have to draw the secondary diagonal shown in the red color. This gives you S vector. Subtraction. Now question arises, how to find this S vector? Let me tell you, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड यानी लंबाई निकालना चाहते हो, that is written by this way or this way. The formula of that, without derivation, I am telling you, that is like this: A vector square plus B vector square twice AB cos theta. Some student can say me, sir, the same formula you write in the previous case. No, in the previous case there was plus sign. Here I am putting minus. So when you have to find S, here should be negative sign. When you have to find R vector, previous article, then you have to put here plus sign. Number one. Number two, he can ask me what is the direction of this red vector, yani S vector. इसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे? Then we will say very simple. We will say, you see, your A vector is going to this side. Your S vector, our resultant S vector subtraction of the two vectors is going to this way. So their directions are mentioned. The angle between them, alpha dash, is shown in white color. This alpha dash has the formula like this: tan alpha dash is equal to alpha dash is touching vector A, not B. And add one more thing: vertically opposite angles are equal. This is also alpha dash. So alpha dash is touching A. Touching vector is written always here magnitude wise. Non-touching is written here, also written here, sine upon cos. But it is almost similar formula which we discussed in the last article. But instead of positive sign putting here, you have to put the negatives. So in this way, you can calculate alpha dash. In the next step, it will be tan inverse of this whole square bracket. Same bracket. This way you can calculate the subtraction of the two vectors. Not only alpha dash gives the direction of S, and under root formula gives the magnitude of S. This is subtraction. Now let's call about relative velocity. What is this? Listen carefully. Suppose I have to find this V12. इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है, ध्यान से सुनो बेटे, इसका मीनिंग है relative velocity of body number 1 with respect to body number 2. 1 की relative velocity with respect to 2. और बच्चा बोलता सर अगर मैं यहाँ 2-1 लिख देता तो तब वो होता है relative velocity of 2 with respect to 1. तो इसको निकालना कैसे है सर, और इसका सिंपल मीनिंग क्या है? पहले इसको निकालने का फॉर्मूला बता दूं. V1 minus V2. Look at the formula. Meaning of the relative velocity. Difference of the two vectors having same units. So this matches this. Difference of the two vectors having same units. जिस तरह से relative velocity निकालना है, उसी तरह से relative force भी निकाल सकते हैं.
उसी तरह से रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर बच्चा मेरे को बोलेगा सर सपोज ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय v1 और b वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय v2 और ये डायग्राम ऐसे ही बनाया जाता और s की बजाय आप लिख देते v12। तो क्या मैं इन दोनों फार्मूलों को देखकर यहां पर v12 का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं? द आंसर इज यस। मैग्नीट्यूड यू कैन यूज दिस फार्मूला v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर minus twice v1 v2 cos theta. Theta is what? Smaller angle between the direction of v1 vector and v2 vector. एक मुझे बोलता है सर फिर अल्फा डैश भी क्या निकाल सकता हूँ सेम तरीके से? बिल्कुल। tan अल्फा डैश कैसे? अगर हमने a वेक्टर को v1 लिया है तो इट मींस इट इज टचिंग टू v1. Touching angle is written once in the denominator. Non-touching is written in the numerator as well as denominator. Put sin theta here, cos theta here. Here it is -1. यानी कि आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को डायरेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन पे लगा सकते हो। एक बच्चा कहता है सर ये जो आपने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर लगाया इसके सामने आपने ऐसे तो लिखा नहीं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यहां आपने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर लिखा तो यहां आपने रिलेटिव लिखा, रिलेटिव माइनस तो लिखा नहीं, तो आपने सेम फार्मूला कैसे लगाया? तो मैं उस बच्चे को बोलूं कि आपको रिलेटिव का मतलब ही समझने में आया। मैं आपको समझाता हूं। बेटे आप ध्यान से सुनना। मान लो योर अटेंशन, मान लो इतना बड़ा एक समंदर है, उस समंदर के अंदर एक बच्चा एक शिप में बैठा हुआ, एक बच्चा एक शिप में बैठा हुआ इधर को जा रहा है v1 वेलोसिटी से और एक बच्चा इधर को जा रहा है और वो दूसरे शिप में बैठा है और वो शिप v2 वेलोसिटी से जा रहा है। दोनों बच्चे एक दूसरे को बाय बाय कर रहे हैं। तो सेकंड वाले बच्चे को फर्स्ट वाला बच्चा कितनी तेजी से जाता हुआ लगता है उस चीज को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। जो पीछे वाला होता है वो ऑब्जर्वर होता है, जो पहले वाला अक्षर लिखा होता है उसकी वेलोसिटी नोट करी जाती है। इस बच्चे को पहले वाले बच्चा कितना तेजी से जाता हुआ लग रहा है, दैट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। यहां फिर से बच्चा बोलेगा सर आपकी बात हमें समझ तो आ गई पर फिर भी यहां माइनस क्यों लगाया? तब मैं उस बच्चे को बोलूंगा बेटे आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैं क्या कह रहा हूं, दोनों शिप्स चल रहे हैं, सेकंड वाले बच्चे को पहले वाला बच्चा कितनी तेजी से जलता हुआ लगता है, जबकि सेकंड वाला बच्चा खुद को ये मानता है कि मैं नहीं चल रहा, हालांकि रियलिटी में वो चल रहा है। तो सेकंड वाले शिप के अंदर बैठे हुए बच्चे की नजर से पहले वाला शिप ही चल रहा है, वो खुद को रेस्ट पे मान रहा है, अपनी वेलोसिटी मान ही नहीं रहा। इसीलिए पहले वाले बच्चे की वेलोसिटी में से जो दूसरा बच्चा अपनी वेलोसिटी मान ही नहीं रहा टू वाला, उसकी वेलोसिटी को माइनस किया जाता है वेक्टोरियली, इसलिए ये नेगेटिव है। रिलेटिव मैंने इन रिलेशन टू पहले वाला शिप इन रिलेशन टू दूसरे वाले शिप से कितनी गति से चल रहा है वो ऐसे निकलेगा। बच्चा कहता है सर जो प्रेजेंटली आपको ये दी हुई वैल्यूज है ये कौन सी हैं? फिर मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये 20 मीटर पर सेकंड है, ये क्या चीज है? तो मैं कहूंगा जो आपको ये दी हुई वैल्यूज हैं 10 और 20 वो दोनों तो इस थर्ड ऑब्जर्वर जो कि किनारे पर खड़ा हुआ है, रेस्टेड ऑब्जर्वर, उसको कितनी वेलोसिटीज लगती हैं दोनों शिप की, रेस्टेड ऑब्जर्वर को बाहर किनारे पर जो खड़ा है उसके द्वारा नोट करी गई वेलोसिटीज हैं ये वाली, तो असली वेलोसिटीज।
असली मतलब जब ये दोनों शिप की वेलोसिटीज को कोई ऐसा ऑब्जर्वर नोट करे जो खुद रेस्ट पर हो और किनारे पर खड़ा हो, ना इस शिप का पार्ट हो ना इस शिप का पार्ट हो। लेकिन जब एक शिप का बच्चा दूसरे को देखे तब तब रियल वेलोसिटी नहीं लगती, रिलेटिव लगती है। और उसमें जो ऑब्जर्वर वाला बच्चा है वो अपनी वेलोसिटी को कंसिडर ही नहीं करता कि मैं मूव कर रहा हूं, हालांकि वो मूव कर रहा होता है इसकी नजर से। क्योंकि वो कंसिडर ही नहीं करता इसलिए उसकी वेलोसिटी को माइनस किया जाता है। इसीलिए रिलेटिव वर्ड के आगे माइनस से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और माइनस के फार्मूले वेक्टर वाले, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया करते हैं। अब मैं अपने बच्चों से पूछने लगा हूं, कोई बच्चा बस ये नहीं पूछेगा सर ये डेरिवेशन आई कैसे, क्योंकि रिजल्ट्स तो आपको पहले करवाए हुए हैं स्कूल टीचर ने या मैंने। अब अदरवाइज जो आज इसके अंदर अंदर बताया है, मैं पूछने लगा हूं और आपने राइट हैंड से रिस्पॉन्ड करना है या लेफ्ट हैंड से। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आइदर रेज राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। प्लीज रेज वन ऑफ द हैंड्स। यार बच्चे भाई घोड़े कुछ बच्चे कहना ही नहीं मानते। प्लीज रेज वन ऑफ द हैंड्स। दोनों हैंड नीचे ना हो किसी के। एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसके दोनों हाथ नीचे हो। अब बेटे मेरे को फीडबैक कैसे मिलेगी, मैं इतनी दूर खड़ा हूं। अगर फीडबैक नहीं मिलेगी तो हाउ विल आई टेक द एक्शन। लेट मी चेक। 11th नॉन मेडिकल राइट हैंड खड़ा है सबका, राइट हैंड राइट, मेडिकल राइट हैंड। ठीक है, सबको समझ आ गया बच्चे, शाबाश शाबाश। ये जरूरी है बेटे, आप मेरी लैंग्वेज पे ना जाया करो। मैं अपने बच्चों का, प्यारे प्यारे बच्चे हैं इतनी दूर बैठे हैं, मैं ये चाहता हूं कि उनको अच्छे से समझ आए, राइट। जितनी आपकी उम्र है अगर उसमें 10 साल ऐड कर दिया जाए उतने साल हो गए हैं मेरे को पढ़ाते हुए। इसलिए मैं चाहता हूं इट शुड बी सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। अब हम एक और आर्टिकल पढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूं पहले तो, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी पे क्वेश्चन आ जाए, रिलेटिव वेलोसिटी, ध्यान से सुनो, योर अटेंशन बेटे। तो उससे कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं? वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, रेन एंड अमरेला के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक आदमी कितना अपना छाता टेढ़ा करे वर्टिकल के हिसाब से ताकि वो बारिश से बच सके चलता चलता। दूसरा इससे क्वेश्चन हो सकते हैं रिवर एंड स्विमर वाले क्वेश्चन, रिवर एंड स्विमर या रिवर एंड मोटर बोट। मतलब जैसे मेरे सामने से नदी जा रही है लंबी चौड़ी और मैंने जंप मार के स्विम करके उसको क्रॉस करना है। मैं इधर को जंप मारूं या वर्टिकल मारूं या इधर को मारूं, कम से कम टाइम में रिवर को क्रॉस कर सकूं। टाइम फैक्टर कम लगाना चाहता हूं क्योंकि मेरा स्टेमिना कम है। मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी नदी से बाहर आऊं। या दूसरा क्वेश्चन कि मेरे को स्टेमिना की प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो डिस्टेंस मिनिमम चाहता हूं पार करने के लिए। दोनों बातें अलग अलग हैं। ऐसे मत सोच लेना अगर क्रॉस करने के लिए रिलेटिव मोशन में डिस्टेंस मिनिमम है तो टाइम भी मिनिमम होएगा, अलग अलग होते हैं दोनों। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक इससे और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, थीफ एंड पुलिसमैन, चोर भाग रहा है और पुलिसमैन ने उसको पकड़ना है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और क्या है, और किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, मॉम एंड चाइल्ड रनिंग, ये भी क्वेश्चन होते हैं। अब बच्चा कहता है सर जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है ना, वो इनमें से हमें एक आधी एग्जांपल करवा दो ताकि हमें लिंकेज करना आ जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी का जो आर्टिकल हमने अभी सीखा है वो इन सिचुएशंस के ऊपर कैसे लगाया जा सकता है। तो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। हम ये वाला लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। मान लो बेटे, ध्यान से सुनना प्लीज।
मान लो ये बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, छोटी क्लास का बच्चा है, वो कहता मम्मा आज संडे है मैंने नहीं जाना स्कूल। उसके मम्मा कहते हैं नहीं बेटे, संडे तो कल था, आज संडे नहीं आज मंडे है। और बच्चा कहता नहीं नहीं, इस वाले हफ्ते में 2 संडे हैं, इसलिए मैंने जाना नहीं। तो चाइल्ड इधर को भाग रहा है, छोटा बच्चा, वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड। और मम्मा को पता है कि ये बहानेबाज है, इसको मैं स्कूल भेज के छोड़ूंगी। अगर नहीं भेजूंगी तो मेरा बच्चा पढ़ाई में कमजोर रह जाएगा, मैं इसको पकड़ के स्कूल भेजूंगी भेजूंगी आज। तो मम्मा इसके पीछे भागते हैं। गॉट इट? तो वेलोसिटी ऑफ द मॉम अदर। अब गौर से देखो, ध्यान से सुना, अगर ये चाइल्ड इधर को 20 मीटर पर सेकंड से भागे और मम्मा ने मान लो कोई इस तरह के कपड़े डाल रखे हैं, इतने तेज नहीं भाग सकते, मान लो वो साड़ी वगैरह में है, तो वो 10 मीटर, चलो 12 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हैं, तो ये बच्चा तो उनकी पकड़ में आएगा ही नहीं। कैसे नहीं आएगा? क्योंकि ये तेज भाग रहे हैं, ये स्लो भाग रहे हैं, और बच्चा इनकी पकड़ में नहीं आएगा। इन दोनों का डिफरेंस के हिसाब से बच्चा इधर को भागता रहेगा। कितने डिफरेंस है? 20 - 12, 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये बच्चा अपने मम्मा से दूर हटता चला जाएगा, और मॉम विल नेवर बी एबल टू कैच द चाइल्ड। लेकिन ये तो बड़ा आसानी से हमें समझ आ गया। टीचर, बच्चा बोलेगा सर आपने यहाँ कोई रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट तो लगाया ही नहीं, ये तो हमें वैसे ही समझ आ गया। लेकिन मैंने जानबूझकर सिंपल एग्जांपल ली, इसी एग्जांपल को मैं रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करता हूँ। गौर से देखना, योर अटेंशन। relative velocity of child with respect to mother। इसके मम्मा को क्या लगता है कि मेरा बच्चा कितनी तेजी से मेरे से परे भाग रहा है, जबकि मम्मा मन में ये सोचती है कि मैं भाग नहीं रही, रियलिटी में वो भाग रही है। बिल्कुल शिप वाली एग्जांपल से मैच करती है, जो मैं थोड़ी देर पहले शिप की एग्जांपल समझा रहा था, 2 बच्चों वाली। इस मम्मा को लगता है मेरा बच्चा कितनी स्पीड से मेरे से परे जा रहा है, जबकि वो अपनी वेलोसिटी को मान ही नहीं रही कुछ, और हालांकि रियलिटी में है वो भाग रही। तो मैंने उसको यहाँ पिछले आर्टिकल में ऑफ वन शिप विद रिस्पेक्ट टू टू लिखाया था, अब लगा रहा हूँ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू मॉम। तो उसके हिसाब से ये ऐसे बनना चाहिए। क्लियर है बेटे? अब अगर ये ऐसे बनना चाहिए तो बच्चा कहेगा सर आपने इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी हमें निकालना सिखाया था, और वो आपने सिखाया था चाइल्ड की वेलोसिटी का स्क्वायर, मॉम की वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस चाइल्ड की वेलोसिटी मॉम की वेलोसिटी, cos of the angle between the directions of the both velocities under root। तो मैं कहूंगा ध्यान से सुनना, बच्चा इधर को भाग रहा है, मम्मा भी इधर को भाग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो उनकी डायरेक्शन में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। अगर बच्चा इधर को भाग रहा होता, मम्मा इधर को भाग रहे होते, तब हमने 90 डिग्री लिया होता एंगल। फिर से देखो, बच्चा इधर को भाग रहा होता, मम्मा इधर को भाग रहे होते, तो 90 डिग्री लेते हैं एंगल। अब बच्चा भी उधर ही भाग रहा है जिधर मम्मा भाग रहे हैं, तो एंगल को 0 डिग्री लिया। तो पुट करते हैं, मम्मा की वेलोसिटी कितनी है? 12, नहीं चाइल्ड की कितनी है, सॉरी 20, 20 का स्क्वायर। मम्मा की कितनी वेलोसिटी है? 12 माइनस ट्वाइस चाइल्ड की वेलोसिटी मम्मा की वेलोसिटी, कॉस ऑफ 0 डिग्री। थीटा को 0 डिग्री पुट कर दिया। उससे अगला स्टेप देखो बेटे, इसका मतलब ये बन गया, गौर से देखो, 20 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस 20 इंटू 12,
और सभी बच्चों को पता है cos 0 डिग्री 1 होता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। अब गौर से देखो मैथ का फॉर्मूला, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ट्वाइस ए बी, तो इसको बंद किया जा सकता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोला जा सकता है, ऊपर से अंडर रूट। और सभी बच्चों को पता है अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कट होते हैं, 12 माइनस 20 माइनस 12, देखो सेम आंसर आ गया, 8 मीटर पर सेकंड, सेम आंसर। तो कोई बच्चा मेरे को कहता है सर इतना मुश्किल तरीका क्यों लगाएं, जब हमें आसान तरीका पता है कि बच्चे की वेलोसिटी में से मम्मा का माइनस कर दो, तो उसका आंसर है बेटे, आसान वाले क्वेश्चन तो इससे भी तरीक सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर ये थीटा 0 डिग्री ना होता, बच्चा इधर को भाग रहा होता, मम्मा इधर को भाग रहे होते, तब उस डिफिकल्ट सिचुएशन में ये तरीके डायरेक्ट माइनस करने वाले कामयाब नहीं होते, फिर यही तरीका कामयाब होता है। ये एक स्पेशल सिचुएशन में कामयाब हो सकता है तरीका, लेकिन ये मेथड में थीटा की वैल्यू कोई भी हो, चाहे 0 डिग्री, चाहे 90 डिग्री, चाहे 180 डिग्री, चाहे 45 डिग्री, चाहे 30 डिग्री, सारों में ये कामयाब है। गॉट इट? तो यहां से बच्चे को ये सेटिस्फेक्शन भी मिल गई, हाँ यार ये सिंपल वाली सिचुएशन समझ आ गई, और जो टीचर ने मुश्किल वाली समझाई है जनरल केस, उससे भी सेम आंसर आ गया। अगर ये आंसर सिंपल वाला इससे मैच कर गया, तो अगर किसी सिचुएशन में ये थीटा 0 डिग्री नहीं भी होएगा और कोई एंगल होएगा 30 डिग्री 45 डिग्री, और मैं इससे सॉल्व करूंगा, तो आंसर सेम आएगा, करेक्ट आएगा, करेक्ट आएगा बोलना चाहिए, सेम आएगा। तो इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट के ये फार्मूले सक्सेसफुल हैं। जिन बच्चों को ये एग्जांपल से बेटर क्लियर हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, प्लीज रेज योर राइट हैंड, अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड। मैं चेक कर रहा हूं एक एक बच्चे को। बहुत अच्छे, शाबाश बेटे, थैंक यू। ये इतने बच्चे अगर राइट हैंड खड़ा करते हैं, वो भी इतने दूर बैठे हैं मेरे से प्यारे प्यारे बच्चे, राइट हैंड खड़ा करते हैं, तो ये मेरे लिए एक रिस्पेक्ट की बात है, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों को भगवान ने बहुत अच्छा ब्रेन दिया है, तभी आपको समझ आया। और नंबर 3, जो टीचर इस वक्त डिसिप्लिन की ड्यूटी दे रहे हैं, हम सभी को उनका सबसे ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो हमें समझ नहीं आ सकता। आपको उन्होंने कंट्रोल रखा हुआ है, आपकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। मुझे और आप लोगों को, इन दोनों टीचर्स का जो इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं, सबसे सबसे ज्यादा यूज थैंकफुल होना चाहिए, प्रिंसिपल से भी ज्यादा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अरेंजमेंट करके दिया है, और ये इस वक्त हमें लाइव हेल्प कर रहे हैं, है कि नहीं बेटे? अब अपने बच्चों को टाइम बचा है कि नहीं बचा, पहले ये बताओ, कितने मिनट बचे हैं? कोई एक बच्चा खड़ा होकर बताए कितने मिनट बचे हैं। 4 मिनट बचे हैं। 4 मिनट में ऐसे करते हैं, अगला आर्टिकल अलग लेंगे, इसमें से कोई एक एग्जांपल छोटी सी और कर लेते हैं, मामूली सी, थीफ एंड पुलिसमैन वाली कर लेते हैं, ठीक है? चलो एक एग्जांपल और करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। शाबाश, ध्यान से सुनना बेटे। मान लो इस गली से ये चोर भाग रहा है, और ये पुलिस पीछे आ रही है, पुलिस थीफ, ठीक है, ये उसको पकड़ने के लिए आ रही है, तो थोड़ी देर बाद ये इधर को मुड़ गए, राइट? अब क्या हुआ, ये पुलिस वाला चोर के यहाँ पर ऐसे रॉड फेंकता है, राइट? रॉड फेंकता है, तो वो रॉड इसके घुटने पर लग जाती है, वहां से खून निकलने लगता है। तो पुलिसमैन को पता लग जाता है अब जिधर को खून गिरा है तो चोर उधर उधर कोई जा रहा है, मैं इसको फॉलो करके पकड़ ही लूंगा। तो पुलिस वाला उसके पीछे आता है, लेकिन ये चोर को पता लग जाता है, ये एक्सपीरियंस चोर होता है, ये उसको पता है कि जब मैं यहाँ पहुंचूंगा तो पुलिस वाला मेरे पीछे आएगा, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा इधर जाके
यहाँ ब्लड के टुकड़े गिर जाते हैं और फिर अपने जख्म को ऐसे पकड़ के ब्लड नहीं गिरने देता, इधर को निकल जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ थीफ ये हुई जो कि गिवन है। और पुलिस वाला आता है कि खून इधर निकला है, चोर इधर ही गिरा होगा और पुलिसमैन इधर को भाग जाता है। वेलोसिटी ऑफ द पुलिसमैन। ओके, गॉट इट। आप कह सकते हो जो आपका चोर है वो किसी की ज्वेलरी उठा के इधर भाग रहा है, और जो पुलिसमैन है जिसने इसको पकड़ना ही पकड़ना है वो चकमा दे गया और पुलिसमैन अपना रॉड लेके उधर ही जा रहा है खाली। गौर से देखो, ये दोनों अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं किसी बच्चे को बोलूं बेटे ये पुलिसमैन जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से और ये चोर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो जब ये चोर पीछे मुड़ के देखता है पुलिस वाले को, तो वेलोसिटी ऑफ द पुलिसमैन इतनी लगती है किसको, चोर को, विद रिस्पेक्ट टू थीफ। चोर को पुलिसमैन की वेलोसिटी कितनी लगती है? तो आप कहोगे सर देखो ये तो दोनों परे परे हट रहे हैं, तो 20 मीटर ये भी परे हटने में मदद करता है और 10 मीटर ये भी परे हटने में मदद करता है। तो इस ये चोर उस पुलिसमैन से 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से परे जा रहा है, क्योंकि दोनों परे परे हट रहे हैं इसलिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं परे हटने में। तो ऐसे निकालेंगे हम। मैंने कहा बेटे ये तो आपने सिंपल कॉमन सेंस लगा दी, क्योंकि एंगल आसान था 180 डिग्री। लेकिन मैंने आपको क्या सिखा रखा है सर, आपने सिखाया हुआ है वेलोसिटी ऑफ पुलिस का स्क्वायर, थीफ का स्क्वायर माइनस ट्वाइस पुलिस थीफ कॉस ऑफ थीटा अंडर रूट, ये सिखाया सर आपने। तो मैंने कहा ठीक है भाई ये तो जनरल केस है, तो ये जनरल केस से भी सेम आंसर आना चाहिए। इसको देख लेते हैं आता है कि नहीं, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। पुलिस की वेलोसिटी का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, थीफ की वेलोसिटी का स्क्वायर 100 माइनस 22 20 पुलिस वाली थीफ कॉस ऑफ 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री निकाल के हटे हम। गौर से देखो ये क्या आएगा बच्चे, सभी बच्चे कहेंगे सर कॉस 180 डिग्री आपको पता होना चाहिए -1 होता है। तो जैसे हम इसको -1 पुट करोगे तो ये माइनस इस माइनस को प्लस का बना देगा। तो क्या बन गया 400 का 400 प्लस 100 प्लस ट्वाइस, और वेलोसिटी ऑफ थीफ भी पुट करना चाहिए था मेरे को 10, ट्वाइस हो गया माइनस माइनस 20 इंटू 10। गौर से देखो ये कितना आ गया बेटे 400 प्लस 500, और ये कितना पड़ा है गौर से देखो ये भी 400, 900 का अंडर रूट। क्या ये 30 नहीं आया? क्या ये इससे मैच नहीं कर गया? कर गया। इसका मतलब है मेरे बच्चों को रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना आ गया जनरल वाला। कितने बच्चों को ये एग्जांपल भी समझ आ गया? प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यस। सभी प्यारे प्यारे बच्चों को आज इतने मजे से पढ़ने के लिए मेरी तरफ से शाबाश इन द फॉर्म ऑफ क्लैप। अब जिनको आज का सारा लेक्चर समझ आ गया, मैं लेक्चर वाइंड अप करने लगा हूं, सारा लेक्चर समझ आ गया, वो एक बार मेरे को ऐसे वेव करके दिखा दो हाथ, ऐसे वेव करके दिखा दो बस दोनों हाथ। शाबाश। तो एक बच्चे को छोड़कर नॉन मेडिकल में फर्स्ट बच्चा बैठा है टी शर्ट वाला ब्लू, उसको छोड़कर बाकी सबको समझ आ गया, बहुत अच्छे। तो इसका एक बच्चे को नहीं भी आया तो नो प्रॉब्लम, बाकियों को आ गया। थैंक यू, अगली बार करते हैं।
या आप करते थे कि अपन